Everyone, welcome back to the channel. So today I'm going to show you a really interesting DevOps project called Universal Kubernetes Installer. So let's imagine installing a, a production ready Kubernetes cluster in just 10 minutes without writing complex command, editing YAML files, or troubleshooting dependency. Sounds crazy, right? So, but that's exactly what I built. So, if you have ever tried installing Kubernetes manually, you probably know how complicated the process can be. You need to configure multiple components like container runtime, KubeADM, kubelet, networking plugins, and cluster initializations. And when you are setting up multiple nodes, things become even more complex, right? So this platform allow you to deploy and manage Kubernetes cluster using a powerful web interface instead of manually running kubeadm commands, right? So you know so the problem with the Kubernetes installations, like before understanding the tools, so let's understand the real problems. So installing Kubernetes manually can be extremely complex. Normally the process involves like configuring operating systems dependencies, installing container runtime, installing kubeadm, kubelet, and kubectls, configuring networking plugins, initialization the control planes, joining the worker nodes, and troubleshooting the installation's error. So even experienced DevOps engineers sometimes spends hours time fixing dependencies issued during installations. And when you are deploying multiple node clusters, the complexity increases significantly. So that's why I built the Catus installers. So the idea was simple. So that turn the entire Kubernetes installation workflow into a zero touch deployment system. So here I build the projects, and it's run on our Docker desktop simply. So you can see the back end and the front end. Okay, so here I have run on the project in our local system. So this is the Docker desktop. So there are two services, backend, the front end. Okay, so now we can open the real projects. Okay, so you can see. So this is the our login page. Okay, so अभी मैं यहाँ पे सिंपली ऐड यूजर नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ. ओके, सो यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो सभी के लिए सेम है. ओके, सो जब भी आप ये मेरे प्रोजेक्ट्स को यूज़ करोगे तो मैं आपको यूज़र नेम पासवर्ड बता दूंगा कि एग्जैक्टली क्या है. ओके, सो आप वही सेम यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो. तो ये सबके लिए सेम है जो भी मतलब इस प्रोजेक्ट को यूज़ करोगे. दैट्स सिंपली ऑथेंटिकेट. ओके, सो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा डैशबोर्ड है. ठीक है, इनिशियल कैडेंस इंस्टॉलर का. ओके, यू कैन सी the dashboard. So we can simply walk through overview of the project. So Universal KTS installer is a UI based Kubernetes automation platform. Instead of running multiple CLI commands, everything happens through a clean and interactive web interface. So the system automates cluster provisioning, node configuration, dependency installation, control plane setup, networking deployment, and cluster monitoring. So the platform also provide advanced DevOps capabilities including like 3D topologies, visualization, intelligent scaling, एड ऑन मार्केट प्लेस. सो यहाँ पे आपको मल्टीपल एडोस भी मिलेंगे जो आप रन टाइम जब भी क्लस्टर इंस्टॉल करोगे तो उस समय भी इंस्टॉल कर सकते हो. और बाद में भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है कि मेरे को और भी एडोन्स ऐड करने हैं क्लस्टर के अंदर तो वो भी आप कर सकते हो. स्मार्ट डायग्नोसिस ऑटोमेट अपग्रेड. सो आपको अगर लाइक हमारा अभी करंट वर्जन 32 है, 33 पे जाना तो आप इजीली उसको अपग्रेड कर सकते हो.
कुबरनेटिस क्लस्टर। सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले 2 वीएम्स क्रिएट कर लिए। ओके, सो एक मैंने अभी फ़िलहाल केस पे एक मास्टर एक वर्कर लिया है। ओके, सो हाउ कैन बी लाइक डिप्लॉय Kubernetes clusters in these views? Okay, so let's start. So आपको अगर fresh installation करना, then you can go for smart deploy. Okay, then you can put it your the cluster name. Okay, so I can put k it is cluster. Okay, then you can choose the runtime environment. So आपको Kubernetes का कौन सा वर्जन यूज़ करना है, तो यहाँ पे सभी वर्जन सपोर्ट करते हैं। सो अभी के केस में मैंने लेटेस्ट स्टेबल वर्जन लिया है। यहाँ पे 2 नेटवर्किंग है, एक है फ्रेनल और एक है कैलिको। सो यू कैन यूज़ एनी वन। सो एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग दी फ्रेनल CNI फैब्रिक। देन कंटिन्यू। अब आपको क्या करना है कि आपको जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करना, लाइक मास्टर और वर्कर्स क्रिएट करना, तो यहाँ पे आपको मास्टर्स की आईपी देनी है 192.168.2220.80। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑथेंटिकेट करते हैं कि हमें जिस पे क्लस्टर डिप्लॉय करना है तो वो कनेक्शन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये सेंटोस वीएम है और यहाँ पे 2 कंप्यूट और 3 GB मेमोरी है, लेटेंसी कितना है, तो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। इसका ये ब्लूप्रिंट्स भी है। अब यहाँ पे हम वर्कर नोड ऐड करेंगे 192.168.22.81। ओके, देन द पासवर्ड। सो देन ऑथेंटिकेट द वीएम्स। ओके, सो आप यहाँ पे SSH की के थ्रू भी कर सकते हो। तो अभी के केस में मैंने सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू किया, देन कंटिन्यू। ओके, नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको एडॉन्स मिलेंगे। तो एडॉन्स में क्या होता है कि लाइक अभी जब क्लस्टर इंस्टॉलेशन होगा, तो क्लस्टर इंस्टॉलेशन के साथ आप कौन कौन सा एडॉन ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइक प्रोमेथियस, ग्राफना, क्यूबरनेटिस, यहाँ पे कोई भी जो एडन्स अवेलेबल है अभी के केस में, अभी तो आप वो एडन्स ऐड कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैंने इंग्रेस का एंजिनिक्स ऐड किया हुआ है, ठीक है। देन कंटिन्यू। तो यहाँ पे फाइनल सिंथेसिस है कि हम जो भी क्लस्टर इंस्टॉल करने वाले हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन से कि केटस क्लस्टर नेम है, रन टाइम कौन सा है, कौन सा नेटवर्किंग है, ठीक है। ये मैनिफेस्ट है कि क्या क्या आईपी है, मास्टर, सेंटोस। ओके, ये ऑटोमेटिकली इसने फैच कर दिया है कि सेंटोस का है वीएम। अगर यह मल्टी ओएस सपोर्ट करता है, तो अगर यूबेंटू है तो यूबेंटू के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सारे होंगे, ठीक है। आपने क्या एडोन्स ऐड किए हुए हैं, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिख जाएगी। देन लॉन्च द क्लस्टर्स। तो जब क्लस्टर लॉन्च करेंगे हम, तो लॉन्च करने से पहले आपको जो प्री फ्लाइट चेक्स होते हैं, ठीक है, कि ये क्या क्या करने वाला है क्लस्टर्स पे, ये सारी इन्फॉर्मेशन है। रन टाइम इंजन्स के रिगार्डिंग, क्यूबरनेटिस बाइनरीज कौन कौन से इंस्टॉल करने वाला है, क्या क्या चीज़ें, ठीक है, बूटस्ट्रैप वगैरह क्या क्या करने वाला है, नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या करने वाला है, ठीक है, वर्कफोर्स एडवांस में हमने जो ऐड किया क्या क्या करने वाला है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो वन बाय वन कि ये क्या क्या करने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 नोड है, ठीक है, एक मास्टर एक वर्कर, ठीक है। देन इनिशिएट द डिप्लॉयमेंट, ठीक है। सो जैसे ही हमने इनिशिएट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। तो यू कैन सी कि इसने क्या क्या किया, ठीक है। तो सबसे पहले कनेक्ट टू द इंस्टॉलेशन स्ट्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो भी हमारा मास्टर नोड है उसकी को कनेक्ट किया, वर्कर को कनेक्ट किया। देन जो भी प्रीफ्लाइट चेक्स वगैरह सभी नोड पे चेक कर रहा है, ठीक है, क्या CPU वगैरह है, ठीक है, स्वैप इनेबल है तो उसको डिसेबल करेगा, ठीक है। और ये सारे पोर्ट्स वगैरह चेक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पहले से किया नहीं है, ठीक है। तो जो पोर्ट्स रिक्वायर्ड होते हैं क्लस्टर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो ये पोर्ट्स चेक करेगा, उसको इनेबल कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फायरवॉल को डिसेबल नहीं किया है, यहाँ पे हमने जो भी रिक्वायर्ड पोर्ट है उसको इनेबल किया, ठीक है। S9X पॉलिसीज वगैरह सारी चीज़ें जो जो रिक्वायरमेंट होती है क्लस्टर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली कर रहा है। आपको कुछ भी मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिंपल एक वीएम क्रिएट किया और उसको आईपी अपने असाइन कर दिया, ठीक है। देन उसको हम सिंपली यहाँ से कनेक्ट करेंगे, देन इंस्टॉलेशन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप मल्टीपल मास्टर 1 2 3 4 कितने भी कर सकते हैं, कितने भी वर्कर नोट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें ये
बाय वन करते जा रहा है, तो इट विल बी टेक अराउंड 10 to 12 or 15 minutes, डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट। ओके, क्योंकि ये पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करेगा। तो लेट्स सी, हम वेट करते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का।
ये एटलीस्ट आई थिंक द मास्टर नोड इज क्रिएटेड, सो हम क्या करेंगे, you can connect the master node using the tool. So let's say SSH root ethernet 192.168.20.id. Okay, so मास्टर नोड कनेक्ट हो गया। देन कमांड डालते हैं watch ctl get node। सो अभी आप चेक कर रहे हो कि अभी हमारा जो मास्टर नोड है, ठीक है, वो आ गया है, बट इस स्टेटस इज नॉट रेडी, सो इट विल बी टेक अराउंड 1 मिनट और 2 मिनट। ठीक है, ये जस्ट अभी क्रिएट किया, यू कैन चेक द वर्जन ऑल्सो हियर। ओके, सो मे बी 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा। देन उसके बाद फिर जो वर्क नोड है वो भी यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस। या सो यू कैन सी अभी जो मास्टर नोड है हमारा वो रेडी स्टेट में आ चुका है। लेट्स सी कि वर्कर नोड को कितना टाइम लगता है, तो अभी हमारा इंस्टॉलेशन कहाँ तक पहुँचा है। सो इट ऑलमोस्ट completed 75%। ओके, नाउ इट्स विल बी, या इट्स जॉइन द वर्कर नोड। सो अभी आई थिंक द वर्कर नोड भी आ चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्कर नोड अभी भी रेडी स्टेट विल बी टेक अराउंड 1 मिनट। ओके, 1 और 2 मिनट्स और 2 मिनट के अंदर अंदर ये भी रेडी स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, सो ये बहुत ही मतलब एक सिंपल है कि लाइक आप किसी भी कहीं पे भी हो और मतलब आपको इजीली कुबरनेटिस क्लस्टर्स क्रिएट करना है, ठीक है, तो यूजिंग दिस टूल यू कैन क्रिएट इजीली। ठीक है, आपको मल्टीपल ब्लॉक्स और ये सब चीज़ें और मतलब कौन से क्या क्या इंस्टॉल करना है, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बेसिकली क्या होता है कि किसी भी कंपनी के अंदर हमें मतलब मल्टीपल टाइम क्लस्टर्स क्रिएट करना है, कुछ भी टेस्टिंग करना है तो हमें क्लस्टर क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हम मतलब अगर कोई ऐसा ऐसे भी लोग होते हैं जो डेवलपर होते हैं, राइट, तो उनको क्या होता है कि हाँ मुझे टेस्ट करना है अपनी एप्लीकेशन को, तो मुझे क्लस्टर रिक्वायर्ड है। तो आप वो डेवऑप्स इंजीनियर के पास जाओगे, रिक्वेस्ट डालोगे, देन इट विल बी क्रिएटेड, विल टेक अराउंड 1 डे भी टाइम लग सकता है, 2 डे भी टाइम लग सकता है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन जो भी रहेगा कि डेवऑप्स इंजीनियर कितना टाइम लेता है। ठीक है, बट आपका ये जो टूल है, आप इस टूल्स के थ्रू इजीली आप 10 to 15 मिनट के अंदर खुद का क्लस्टर क्रिएट करके आप चेक कर सकते हो, और जो भी आपको टेस्टिंग करना है, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करना, वो कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो क्लस्टर है आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ठीक है, ये रेडी स्टेट में है, और जो हमने एडॉन्स यहाँ पे डाले थे, ठीक है, तो वो एडॉन्स इंस्टॉल कर रहा है। तो यू कैन सी योर वर्कर नोड इज रेडी नाउ इंस्टॉलिंग द एडॉन्स। ठीक है, तो अभी ये इंग्रेस जो हमने एडॉन्स ऐड किया था एक्स्ट्रा, तो वो एडॉन्स यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, इंस्टॉल कर रहा है। सो इट विल बी टेक अराउंड 1 or 2 3 मिनट्स। ठीक है, तो ये वैलिडेट सारी चीज़ें, तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली इसने कर दिया है। यू कैन सी यू नो कि यहाँ पे रेडी नोड्स हो गए, क्या क्या चीज़ें रनिंग स्टेटस दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लस्टर इज रेडी। तो जब क्लस्टर रेडी हो जाता है तो आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती है, एक तो होता है कि यू कैन ईजिली डाउनलोड योर कॉन्फ़िग फाइल। ठीक है, आप यहाँ से कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आपको अगर किसी कहीं और भी से कनेक्ट करना है क्लस्टर को, तो यूजिंग दी कॉन्फ़िग फाइल यू कैन कनेक्ट द क्लस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से आपको स्केल करना, लाइक लेट्स से कि अभी आपके पास एक ही वर्कर नोड है या एक ही मास्टर नोड है, आपको स्केल करना है तो आप यहाँ पे इस फीचर पे स्केल दिस क्लस्टर कर सकते हैं। आपको एड ऑन्स करना है, लाइक कि अभी मेरे को इस क्लस्टर के अंदर मान लो कि मुझे आर्गो सीडी इंस्टॉल करना है, तो आप वहाँ पे जाओगे इंस्टॉल एड ऑन्स पे, मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। तो अभी के ये डैशबोर्ड पे जब ये क्लस्टर इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है तो क्या क्या चीज़ें दिखती है हमें। ठीक है, तो आप ये पूरा जो एंटायर लॉग है क्लस्टर क्रिएशन का, वो सारा लॉग चेक कर सकते हो, या कम्प्लीटली यहाँ पे सारी चीज़ें जो जो इंस्टॉल किया है, सारी जो प्रोसेस हुई है, सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे नॉट हेड मॉनिटरिंग कि अभी आपका मेमोरी सीपीयू यूजेस कितना है, प्लॉट कितने रेडी हुए हैं अपने क्लस्टर के अंदर, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक 3D ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, टोपोलॉजीज है। ठीक है, अभी एक मास्टर एक वर्कर नोड है, उसके होस्ट नेम वगैरह क्या है, सारी चीज़ें है। आप लिस्ट में भी देख सकते हो एज ए लिस्ट। ठीक है, आप 3D व्यू में देख सकते हो। ठीक है, यहाँ क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब हमने जो क्लस्टर का नाम डाला था, ठीक है, उसका एंड पॉइंट्स क्या आएगा, कितने नोड है। ठीक है,
ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखेगी। ठीक है, लेट्स से कि अभी मेरे को स्केल करना है क्लस्टर पे, एडॉन्स करना, अपग्रेड करना, तो मैं इजिली स्केल दिस क्लस्टर, अगर मुझे स्केल करना है तो मैं स्केल दिस क्लस्टर पे जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो भी मास्टर नोड है हमारा, लेट्स से कि मेरे को एक और मास्टर नोड बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि जो एक्चुअल जो आपका पहला मास्टर नोड है उसकी यहाँ पे एक बार कनेक्शंस करना पड़ेगा, क्योंकि उसको कैसे पता चलेगा कि हमें किस मास्टर के नोड के थ्रू में को मतलब बनाना है, कि उसको इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि हमें क्या क्या चीज़ें हो चुकी है और क्या चीज़ें करने के लिए हमें कहा गया है। लेट्स से कि मुझे एडॉन्स करना है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे वापस क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड एच ए मास्टर नोड। ठीक है, यहाँ पे आईपी डाल दूंगा, देन कनेक्ट करके। ओके, अगर मुझे वर्कर नोड ऐड करना है तो मैं वर्कर नोड ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपको ऐड ऑन करना सारी चीज़ें आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर अब नेक्स्ट थिंग कि जब भी आप क्लस्टर रेडी हो जाता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपका क्लस्टर्स वगैरह, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी, आपका नेटवर्किंग वर्जन्स। ठीक है, आपकी लाइव मैट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे दिख सकते हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल कि मुझे एडॉन्स इंस्टॉल करना है इसके अंदर, तो आप एडॉन्स यहाँ पे चूज कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। यहाँ पे जस्ट इंस्टॉल वो एड इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैनेज इन स्केल पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे से भी आप कॉन्फ़िग फाइल डाउनलोड कर सकते हो इजीली, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब लेट्स से कि मुझे अपग्रेड करना वर्जन, तो यहाँ पे अभी वर्जन क्या है 32 है, तो मुझे यहाँ पे रिकमेंडेड क्या दिया है इसने 33, तो 33 पे जाके मैं स्टार्ट अपग्रेड करूँगा तो अपग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, ऑर्बिटल टर्मिनल। ठीक है, ऑर्बिटल टर्मिनल बेसिकली ये मतलब इस टाइप के यूज केस में कि हमें कोई ऐसी कमांड चलानी है जो दोनों नोड पे हमें कि दोनों नोड की इंफॉर्मेशन चेक करनी, लाइक मैं अप टाइम करके लिखता हूँ तो मुझे दोनों, तो ये जो अप टाइम है तो मतलब ये जितने भी नोट्स होंगे इसके अंदर सारे नोट्स पे चलेंगे सेम कमांड, और उसकी इन्फॉर्मेशन ला के देगा हमें। तो ये उसके लिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ें करनी है कि हमें मल्टीपल नोट्स के अंदर जाके हमें एक सिंपल सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑल नोट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके थ्रू हम चल सकते हैं। लाइक कि मुझे हर एक नोट्स की मेमोरी ना चेक करनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक कमांड चलाऊंगा तो मुझे सारे नोट्स की मेमोरी का डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा हम कर सकते हैं। तो ये जो टूल्स है आप देख रहे हो, ये वेरी हेल्पफुल है जितने भी मतलब यूजर्स को, कि जो कैट थोड़ा सिंपल वे में इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसा कुछ है नहीं ट्रिकी, कि मतलब यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे सिंपल डिप्लॉयमेंट के लिए तो आप यहाँ से वापस से डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, देन इंटेलिजेंस स्केल सेम वही है कि एच ए वगैरह आपको मल्टीपल नोट्स वगैरह क्रिएट करना है तो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो इजीली, और आप इजीली क्लस्टर क्रिएट कर सकते हो। तो इट विल बी टेक अराउंड 10 to 15 minutes, मे बी 10 to 15 minutes, बिकॉज इट विल बी डिपेंड ऑन द इंटरनेट स्पीड। ओके, क्योंकि ये पैकेजेस वगैरह बैकेंड में डाउनलोड करता है। सो थैंक यू। टूल के लिए मैंने एक मिनिमल प्राइस रखा है, दैट इज द 49 रुपीज़। ओके, सो आपको ये टूल के लिए आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, लाइक KDS इंस्टॉलर और bosso.app, सो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। So, so first, click the link provided in the descriptions. Okay, so it will be take you to premium checkout page. That is the, you can see the universal ADS installer. Okay, so there is, you will see a QR code. So the price for this tool is only 49 rupees. Simply scan the QR code and complete the payment using any UPI app. So that will support any PhonePe or BB, any kind of UPI app, it will be supported. So once the payment is done, okay, so you can click on this step 2, the submit details. Okay, so here you can see there is the one page. Okay, so you need to, you know fill out the Google form with your name, email address, or transaction ID, organization name, GitHub username, GitHub email IDs. Okay, so
So I will be verify your transaction first. So once verified, which typically take between 1 or 2 12 hours. Okay, so you will receive a invitation to my private GitHub repository directly in your mail. So accept the invitation and you ready to go. Okay, so that is simply, so आप जैसे ही पेमेंट करेंगे लाइक ओके, सो आपको ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है, आपका गिटअप और यूज़र नेम और ईमेल आईडी। सो मैं आपको क्या करूँगा कि उस ईमेल आईडी पे आपको मेरी जो प्राइवेट रिपोजिटरी है गेटेस्ट इंस्टॉलर की, वो आपको इनवाइट कर दूँगा। सो आप वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। सो ओके, देन सबमिट दिस फॉर्म। सो आई सो मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, देन आई विल बी इनवाइट यू अवर प्राइवेट गिटहब repository for the Git installer. So what you are waiting? So get your bundle now and make your Kubernetes deployment super fast. So all the links are in description so below. And thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you.